In view of the Kawad Yatra from the 11th of July to the 23rd of July, Delhi Minister Kapil Mishra has announced that meat shops along the Yatra route will remain shut during this period. Meanwhile, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath conducted an aerial survey from Ghaziabad to Bijnor, directing strict action against any attempt to defy the Yatra, including acts like spitting in the food. Emphasized the need for top-notch arrangements for cleanliness, electricity, lighting, essential services like food stalls, tents, toilets, rest areas with support from NGOs. In preparation, Food Safety and Drug Administration officials inspected shops in Chinhat, collected samples, testing them in the Food Safety on Wheels van, where adulteration was demonstrated through chemical reactions. कांवड़ यात्राओं में बंदी रहेगा और ये निर्णय है और ज्यादातर लगभग सभी जो इस प्रकार की दुकानें हैं वो इलीगल हैं। तो वैसे भी वो कानून के तौर पर होनी नहीं चाहिए। कांवड़ के दौरान पर तो विशेष तौर पर ये कानून का पालन सबको करना ही पड़ेगा। किसी विशेष आदेश की आवश्यकता नहीं है। एग्जिस्टिंग हमारा जो कानून है और जो नीतियां हैं उनके तहत ही ये सब गैरकानूनी दुकानें कांवड़ यात्राओं में इनको अनुमति नहीं दी जा सकती। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में कम से कम निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो कांवड़ का मार्ग है वहां पर जो मीट मांस की दुकानें हैं, मछली की दुकानें, उन्हें बंद किया जाए। अब दिल्ली में पहली बार ऐसा हो रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि इस बार कांवड़ के जो मार्ग हैं वहां पर मीट मछली बंद रहेगी, लोगों की श्रद्धा को देखते हुए। अलबत्ता तो मंत्री का ये भी कहना है कि ज्यादातर दुकानें दिल्ली में जो मीट मांस बना रही हैं वो अवैध हैं, लेकिन ऐसे कई सारी सड़कें हैं जहां से इक्का दुक्का भी संख्या में गुजरे, वहां पर बड़े बड़े बाजार हैं। मसलन जहां हम निजामुद्दीन में हैं, आमतौर पर अगर देखें तो ये फुल फ्लेज कांवड़ यात्रा नहीं गुजरती, लेकिन कुछ लोग यहाँ गुजरते हैं। 500 मीटर के रेडियस में कई बार कैंप लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी दुकानें हैं और ऐसे में उन दुकानों की एक महीने के भविष्य पर, उनकी रोजी रोटी पर यह सवाल है कि कहीं उनको दुकान बंद तो नहीं करनी पड़ेगी एक महीने में, क्योंकि इसके पहले दिल्ली में कभी ऐसा हुआ नहीं। हालांकि अभी तक इन दुकानदारों का कहना है कि इन्हें कोई नोटिस नहीं मिला, लेकिन जब सरकार ने बयान जारी किया है कि वो नगर निगम से कहेंगे कि इस बारे में आदेश पारित करें, अभी तक मीट मछली की दुकानों को ऐसा कोई आदेश मिला नहीं है लिखित कि उन्हें दुकान बंद करनी पड़े। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार दिल्ली में सरकार बदली है तो नियम भी बदलेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान मीट मछली की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी हो सकते हैं। So as India Today TV has reached inside the mobile van of FSDA, you can see how the food items are being, the samples of them are being experimented out here. This is the sweet item, and to understand whether it's good to eat or not, the inspection process, the experimental process is currently on. As you see the FSDA officers inside this particular food van, and it's not just about this particular thing. You see a lot of masalas out here, chutney, namak, salt, everything out here, and these samples are being collected by the FSDA officers, and that's how they are dealing with this particular thing. As CM Yogi Adityanath has given the order for the proper food, he has talked about the quality of food. That means the gulvatta. He has stressed on the gulvatta, the quality of food, and that's why FSDA team is ensuring that particular thing, not just the identity purpose, but the focus is also on the quality of food. And that's why you see it from the ground that we are reporting from inside the lab to make you understand what all is being done to make your food full of quality, not just for you but also for, especially for the Kamadiyas who will be coming here from July 11. With cameraman Gaurav Gupta, Samarth Srivastava for India Today. We are present at the Chinhat Tiraha near the Deva Road from where Kamadiyas will go, and near that dhaba the eateries are being inspected by the FSDA team. And if you see in the visuals that the officers of FSDA team are writing the identity, the address, registration number, everything around the shops, which was missing for years, for months. But after UP government's new order, you can see at the inspection thing, the various amount of things, the various amounts of elements, you can clearly get the sense how it is being pasted around the shops out here. And this is the best version of showing the identity. And if you have any doubt regarding the food item being served here whatsoever, you can just open the Google Lens on your mobile phone, be it Android or iPhone, and just you can clearly scan on this particular portion. Number 1 is for Android, number 2 is for iPhone, and once you will scan, you will get the sense to complain. This is the Ram Vilas Sahu's shop out here, and this is another interesting picture out here. If you see in the visuals clearly, in my front, 3 kind of masalas, in which one is salt, this is one chutney, and if it is fresh or not, or worth eating or not, that's why the FSDA team has collected these samples, and now
will move to the van to do the sampling, and right here the action procedure is currently on with the FSDA team. भी देखा गया कि भारी संख्या में जो कावड़िए हैं यहाँ पर पहुँचते हैं, आपके खिलाफ नारेबाजी करते हैं और आरोप लगाते हैं कि आपके ढाबे के खाने से प्याज निकला था। सर अभी जो है ना आज 7 तारीख है, ये प्रोग्राम जो है ना अभी सर 8 दिन से तो बिल्कुल कावड़िए नहीं थे। कल शाम से ही सर आए हैं, तो यहाँ पे जो कारीगर रात में था उसने अपना काम बंद करके वो चला गया सर। हेल्पर था तो वो इतनी बात पूछ भी लिया था सर उसने, पता नहीं मेरी तो उससे बात नहीं हुई। तो देखो मैं भी मीडिया से रिटायरमेंट हूँ, अगर सेफ्टी के साथ ही काम करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो अपना गवर्नमेंट अपना कर ही रही है, क्योंकि सेफ्टी प्रिकॉशंस का हमारे यहाँ जो है पूरा ये रखा जाता है सर। और मैंने कुछ फार्म भरे थे सर, ये ना पुलिस इंक्वायरी के लिए भी कुछ इसमें ये नहीं है भाई कोई किसी के साथ कोई धोखाधड़ी है, बिल्कुल नहीं, मैं खुद नहीं मानता सर। अच्छा, तो अभी पुलिस ने आपको क्या सब हैं? पुलिस ने आपको अभी क्या बोला? पुलिस ने कहा भैया बंद कर दो, तो हमने बंद कर दिया सर। हाँ ये है काम होगा तो देखो सेफ्टी के साथ होगा, नहीं तो एक पैसा मुझे भी नहीं चाहिए। हम सभी का सम्मान करते हैं और सबके धार्मिक कार्यक्रम विधिवत सकुशल संपन्न हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है और किसी भी स्थिति में किसी का कोई मान सम्मान को नुकसान न पहुंचे और सबको हम साथ लेकर के चलेंगे। हर स्थिति में जो अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, सनातन धर्म मानने वालों को कोई दिक्कत न हो, कांवड़ यात्रा के दौरान कहीं समस्या न आए, और उसी स्थिति से बढ़ने के लिए सरकार पूरी तरह से सतर्क होकर काम कर रही है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी जी से, कि कांवड़ यात्रा निश्चित तौर से जैसे शांतिपूर्वक तरीके से चली आ रही है सैकड़ों साल हजारों साल, कुछ कराइए। अनावश्यक उसको तोल देने की जरूरत, कि नेम प्लेट लगाइए, आप किसी के कपड़े उतारिए, ये सब चीज़ें केवल और केवल अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, अपनी जो कमियां हैं उसको छिपाने के लिए हिंदू और मुसलमान, मुसलमान और हिंदू, ये काम न करिए।